Good morning. So, sound means anything which produces sensation of listening or sensation of hearing. So, sound means energy which causes sensation of hearing. Sensation of hearing is there, that we listen. We listen, you all are listening what I am speaking. So this is the meaning of sound. Is that clear बच्चों? समझ आ गया सबको? So sound means, yes sir. Yes, sir. type of energy. See, I am speaking, you are speaking. So in front of my eyes there is no microphone, there is the camera, and so the microphone receives the sound and the vibration. Vibration? So vibration is what? To and fro motion. I had explained yesterday. Vibration? So the vibration of the sound. How vibration is produced? Vibration is produced by the sound waves. I have the larynx. This is larynx, Adam's apple. This is called a sound box. Sound box has the vocal cords. So larynx is sound box, and sound box have vocal cords. What are vocal cords? बच्चों vocal cords क्या होते हैं? कौन बताएगा? What are vocal cords? What are vocal cords? प्राची. Sir. प्राची. जिससे अपन Yes, repeat please. जिससे अपन सर मसल जिससे अपनी वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं. Vocal cords are the special type of muscles or threads of muscles which vibrate to produce sound. This is the vibration. I'm just so this is vibration. So I'm speaking, or any person is speaking, speaks. So what happens? There is the air in the lungs. So the air comes in and out. And we have customed our vocal cords from the very beginning, from the childhood, and as a result we are able to produce a particular sound. सबको पता है बात ये? बच्चों सबको पता है साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? Yes sir. Very good. Yes sir. So, Yes. now I am going to explain something more about the sound. So sound requires medium for propagation. You know this thing? Sound requires medium for propagation. And then the yes sir. sound requires medium. Sound requires medium for propagation. And oscillations are there. Vibrations are there. What are vibrations? कौन बोलेगा बच्चों? What is vibration? What is vibration? बोलो बच्चों, vibration क्या है? What is To vibration? and fro motion of, Yes. to and fro motion of an object. Yes, very good. To and fro motion. To and fro. इधर उधर की जो motion है, that is, it is called a vibration. So, vibration is there. You are speaking. You are making sound from your vocal cord, and your, microphone
is receiving, sound energy, and it has the diaphragm, and the diaphragm, changes the current intensity, and through electrical signal, and by the network coming to me, or I am speaking, my microphone in the laptop receive the signal, sends to you, and so it so happens. ये क्लियर बच्चों, समझ आ गया सबको? तो ये चीज आपको जाननी है। अब इसमें कोई भी वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन हैज फॉलोइंग फीचर्स। कोई भी वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन में ये सब फीचर्स होती है। One is there is the time period. अब जैसे 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है, यहाँ एक ये हुक लगा रखा है, और यहाँ क्या है, एक ऐसे मेटेलिक बॉल बांध रखा है। This is what? This is thread, and this is metal bob. मेटल बॉब है ये, 7th क्लास में पढ़ा? यस सर, यस सर, पेंडुलम सर पढ़ा। Yes sir. Yes sir, pendulum. This is called as pendulum. So pendulum क्या करता है? pendulum वाइब्रेट करता है। pendulum क्या करता है? वाइब्रेट करता है। and ये जो पोजीशन है, this position is called as mean position। पता है बच्चों? पता है क्या सबको? ये यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और डिस्टेंस से यहाँ तक ट्रेवल करेगा। ये क्या है? दिस इज द टू एंड फ्रो मोशन। ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। दिस इज टू एंड फ्रो मोशन। To and from. एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन। Oscillation. So basically, oscillation is to and fro motion. Oscillation is to and fro. To and fro motion. तो ये पेंडुलम क्या करेगा बच्चों? पेंडुलम ऑसिलेट करेगा। You know this thing? पेंडुलम क्या करता है? ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट मतलब क्या? घूमना। This is the mean position, ये central position है। This is one side, this is other side. Is that clear? So this is one point. So this is oscillation. So sound is produced by what? No oscillation. There is no sound. There is no oscillation, no sound. So vibrations. Vibrations produces oscillation. No talking बच्चों, please, no talking. Vibrations, this vibration produces oscillation. Oscillation is to and fro motion. ठीक है? अपना जो Switch off your microphone, please. Switch off your microphone. Now, I am going to explain. Some more points about the time period. E और N से E और N फीचर्स होती हैं। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यहाँ लगा रखा है थोड़ा न्यूट्रल। टाइम पीरियड कैपिटल T, टाइम पीरियड इज कैपिटल T. Time period may be defined as the time taken by a vibrating body in completing one oscillation. So this time period T, जैसे यहाँ से मान लो कि यहाँ से
ऑसिलेट कर रही है, तो यहां से यहां तक जो आएगा, जो टाइम लगेगा, इसको बोलेंगे टाइम पीरियड. सो दिस दिस बॉब, मान लो कि इसको मैं यहां से मिटा दे रहा हूं. अब ये मान लो कि इस बॉब को हमने यहां पर लाके छोड़ दिया, यहां बॉब है, ठीक है. तो बॉब यहां से जाके कहां जाएगी, यहां तक चली जाएगी. सो दिस इज द distance from this point to this point, this point to this point, the time taken. This is to and fro motion, and this is nothing but this is oscillation. तो यहां से यहां तक आने में जो लगेगा टाइम, इसको क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन. दिस इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन. और जो भी इसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकन is called as time period. So time period may be defined as the time taken by a vibrating body in completing one oscillation. Write down time period. It may be defined as, are you writing? Everyone writing? Yes, sir. So Yes. Yes, sir. yes, very good. It may be defined as the time period or time taken by a body which is vibrating to complete one oscillation. इतने क्लियर बच्चों, समझ आ गया सबको? एक ऑसिलेशन में जो टाइम पीरियड लगता है, ठीक है बच्चों? Yes, sir. दैट इज Yes, कॉल्ड sir. टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी? सेकेंड होगी, हो सकता है बेटा? सो इट्स यूनिट क्या होगी इसकी? सेकेंड. क्या होगी? सेकेंड. कितना इसमें होता है, ठीक है? ये फीचर्स है किसके? साउंड के फीचर्स है बेटा. तो दिस इज टाइम पीरियड. नाउ next point is the frequency. Next, frequency. Frequency F. Frequency, जैसे देखा होगा, कई लोग बहुत धीरे बोलते हैं, कई लोग बहुत फास्ट बोलते हैं. So there is a difference in the speed. Difference in the speed. मान लो कि बहुत तेजी से बोल रहा है ऐसे. So this is there is no pause between the words. Like we Indians, we speak with emphasis on each word. We emphasis on each word. While you see take the case of Americans. Americans, oh, this your clothes. So they speak like that. There is not proper break. There is continuation of the words. Are you getting a point? बच्चों बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Frequency. Yes. Frequency means the gap. Number of. Actually write down. Frequency may be defined as, it may be defined as number of oscillations. Number of oscillations produced. बेटा आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. दिख रही है मेरे को? So yes. So number of oscillations produced
पर सेकेंड। बेटा इसको जानना है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस पर सेकेंड। अब देखो बेटा ये भी क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। अब इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है, यानी ये क्या है, सेकेंड इनवर्स। इसको बोलते हैं बेटा व्हाट वी कॉल सेकेंड इनवर्स, और वैसे क्या बोलेंगे, पर सेकेंड। सो इट इज कॉल्ड ए सेकेंड इनवर्स। या सेकेंड की पावर में कितना आ गया, -1। ठीक है बेटा, समझा गया सबको। सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। इसके एक और भी, ये तो इसकी कॉमन यूनिट है, दिस द कॉमन यूनिट। इसकी और भी होती है, उसको बोलते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है, HZ इसका सिंबल है, ये इसकी SI यूनिट है। हर्ट्ज, HERTZ। इधर क्लियर बेटा, समझ आ रहा बच्चों सबको? Yes sir. Yes sir. तो बेटा ये व्हाट इज हर्ट्ज? हर्ट्ज इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये साइंटिस्ट का नाम है हर्ट्ज, एंड टू ऑनर द पर्सन दिस यूनिट वाज गिवन। इसका सिंबल क्या है, HZ, कैपिटल H एंड दिस स्मॉल z। सो दिस हर्ट्ज। अब ये हर्ट्ज किसके बराबर होता है, सो सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। बेटा इसको लिख लो, सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज, यानी 1 हर्ट्ज मीन्स पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज मीन्स पर सेकेंड। इज इट क्लियर? Yes sir. Yes sir. जैसे आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी के जो कोई भी अप्लायंसेज होते हैं उस पर कितने हर्ट्ज लिखा होता है, कभी आपने ध्यान दिया? इलेक्ट्रिसिटी के जो भी अप्लायंस होते हैं, टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, उस पर कितने फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, हर्ट्ज लिखा होता है, कभी देखा आपने? हैव यू सीन? मोबाइल पर भी लिखा होता है, मोबाइल के चार्जर पर भी लिखा होता है। ऑल द अप्लायंसेज they work on a particular frequency. Have you seen it? Yes sir. कितना लिखा होता है? How much? सर किसी पे 100 होता है, किसी पे 400 भी होता है। नहीं नाना बेटा, फ्रीक्वेंसी तो 400 होती नहीं बेटा इंडिया में तो। It is 50। कितना लिखा होता है, दोबारा देखना, कितना लिखा होता है? Yes sir. 50। यानी जैसे कल किसी ने पूछा था कि हमें करंट क्यों लग जाता है, सो वी हैव इलेक्ट्रिफिकेशन और वी आर अफेक्टेड बाय शॉक। सो ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी, यानी जो करंट सप्लाई इंडिया में होती है वायरिंग के अंदर, एक सेकंड में कितने बार वाइब्रेशन होते हैं उसकी? 50 टाइम्स। बात समझ आ रही है बच्चों? तो ये 50 मीन्स 50 CPS। CPS का मतलब क्या है? 50 CPS मीन्स 50 साइकिल्स पर सेकेंड। जो अपने घरों में जो भी अप्लायंस होते हैं, हर कंट्री के अलग अलग, यूरोप में फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो यहाँ बच्चों ये CPS साइकिल्स पर सेकेंड को हर्ट्ज बोलते हैं SI में। जो भी अपना अप्लायंस है, आप लोग देखना, अभी मोबाइल का चार्जर हो या कुछ भी, जैसे मोबाइल बहुत फास्ट मोबाइल आ रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर सारे बहुत फास्ट आ रहे हैं। सो इट हैज बीन रिटन, कितना लिखा होता है कि 216 हर्ट्ज। देखा ना, जो महंगे मोबाइल हैं उस पर लिखा होता है। उसकी जो कंप्यूटिंग पावर है बहुत फास्ट होती है। पता सभी लोगों को? हम क्या करते हैं कि वी परचेज बेटर लैपटॉप, वी परचेज बेटर कंप्यूटर, we purchase better mobile. Why?
बिकॉज उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। बोलते हैं बच्चों, ध्यान दिया आपने, देखा मोबाइल पर, घर वाले मोबाइल खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी एस्पेक्ट कितना है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी जितना अच्छा होगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों। सो Yes, sir. far we have discussed 2 points of the sound. Now third is amplitude. Amplitude A. Amplitude A. Write down. अब ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा। अच्छा, सर ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, अब दिख रहा है बेटा। यस सर। Write down. It may be defined as the maximum. देखो, it may be defined as the maximum displacement of a wave motion from its mean position. इसके mean position से, you know, there is the mean position. mean position क्या होती है? जैसे you know, साउंड ट्रेवल करती है, उसके लिए एक मीडियम होना चाहिए। तो मान लिया कि यहाँ एक ऐसा मीन पोजीशन है, बच्चा दिख रहा है ये, दिस इज द जीरो, दिस इज द मीन पोजीशन। अब यहां से मैं उठा के चलता हूं, यहां से ऐसे, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, देख रहे बच्चों? तो ये क्या है, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज ए, इसको ए लिखेंगे या इसको बेटर यू राइट ए, छोटा लिख बेटा, ठीक है, राइट इट स्मॉल ए, ठीक है लिपि? यस स्मॉल ए, कैपिटल भी लिख सकते हैं, लेकिन यार ये क्या है, मीन पोजीशन है इसकी, दिस द मीन पोजीशन। और यहाँ क्या है, ये ऊपर तक आया हुआ है, और यहाँ कितना हुआ है, नीचे तक आया हुआ है। यहाँ क्या हो गया, एम्पलीट्यूड आ गया, ये एम्पलीट्यूड है। द डिस्टेंस क्या ये डिफाइन है, द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कितने डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, कितना ऊपर गया हुआ, अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो क्या ये सारे क्या बराबर हैं, ऑल आर इक्वल, इन केस दे आर नॉट इक्वल, कैसे होगा? जैसे देखो, नाउ सी वेरी केयरफुली, क्या बोलेंगे इसमें, क्या बोलेंगे बच्चों, व्हाट वी से, ये क्या, यहां पर क्या जीरो, यहाँ क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, यू नो स्टार्टिंग। Yes, sir. तो Yes, क्या sir. बोलेंगे, जो टाइम बढ़ रहा है, एज द टाइम इज इंक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इसकी, और इसका क्या बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है बेटा, एम्पलीट्यूड। तो क्या Yes, sir. एज, यहाँ क्या है, टाइम, तो एज टाइम proceeds, frequency and amplitude, Becomes higher. yes, becomes more. यहाँ पर क्या बच्चों, यहाँ रेगुलरिटी नहीं है, here there is no regularity, धीरे-धीरे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, इसमें एक फॉर्म हो गई, एक और फॉर्म भी हो सकती है बच्चों, देखो इसमें, there can be one more form like this, यहाँ बना लिया मैंने, देख रहे हो बच्चों, ये क्या हो गया, ये Yes, sir. व्हाट इज इट,
बोलेंगे व्हाट इज इट? सर फ्रीक्वेंसी। नहीं, फ्रीक्वेंसी तो है, लेकिन क्या है बेटा, क्या बोलेंगे? इज इट रेगुलर, इरेगुलर और व्हाट? सर इरेगुलर। यस, वेरी गुड। इरेगुलर। यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ क्या मिनिमम है, मैक्सिमम हो गया, फिर मैक्सिमम, फिर कम हो गया, फिर बहुत हाई हो गया, फिर बहुत ज्यादा हो गया, फिर बहुत कम हो गया। सो दिस इज इरेगुलर। यहाँ साउंड का जो पैटर्न है क्या है, इरेगुलर है। यू नो, अलग अलग बीट्स होते हैं साउंड में। यू नो देयर आर बीट्स इन साउंड, सबको पता है। यस सर। तो वेरिएशन इन द साउंड पैटर्न। मान लो कि मैं कभी तेज बोल रहा हूँ, कभी बराबर बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि बराबर बोलूं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द पैटर्न ऑफ साउंड। हालांकि ये तो जो हिम्मत बोलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये म्यूजिक के केस में, यू नो, जैज म्यूजिक, रॉक म्यूजिक इज देयर, यू नो, सो दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज देयर। देखा होगा आपने म्यूजिक में जो म्यूजिक सिस्टम्स होते हैं, उसमें होता है ना ग्राफिक इक्वलाइजर। पता है सभी लोग ग्राफिक इक्वलाइजर? यस। ग्राफिक इक्वलाइजर देखा आपने कभी सेटिंग करके मोबाइल के? सर जो व्हाट्सएप ऑडियो, सर जो व्हाट्सएप ऑडियो होती है सर, उसमें भी होता है। हाँ, यस यस, हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या बेटा, दिस इज, यू नो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ क्या है, दिस इज मीन पोजीशन, और ये मैक्सिमा, इसको बोलेंगे मैक्सिमा, और इसको बोलेंगे मिनिमा। ठीक है बच्चों? सो इट इज, सो ये मैंने बहुत ज्यादा बता दिया आप लोगों को एम्पलीट्यूड के बारे में, और सभी लोग इसको ध्यान देते रहे। ठीक है बच्चों? यस सर। तो यस, you know, so till now what we have learned, that sound is produced by, you know, vocal cords, and vocal cords are muscle fibers. Muscle fibers, they vibrate. Vibration is due to the air from our lungs coming out, and so they vibrate. Vocal cords vibrate and particular sound is produced, and you know, it is due to the push of the air. हम क्या करते हैं, आवाज निकालते हैं। जैसे जो लोग बांसुरी बजाते हैं, पता होगा बांसुरी से कैसे, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्लूट, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्लूट, कैसे? सर बाय एयर। ईयर से, यस। जो भी फ्लूट बजाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक पार्टिकुलर अमाउंट में एयर को पुश करते हैं अपने माउथ से, और देखा वो बांसुरी में बहुत सारे होल्स होते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। तो वो ऐसे ऐसे फिंगर्स को प्रेस करते हैं, एंड सो बाय दिस देयर इज, यू नो, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। किसी को बांसुरी बजाना आती है क्या बच्चों? सर मेरे को आती है। कौन बोल रहे हो? सर वागीश व्यास। वागीश, तो बेटा सुनाना कभी, ठीक है? यस, वेरी गुड। दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज। यू नो, बांसुरी बजाना, फ्लूट बजाना बेटा, इट्स वेरी गुड, इट इज वेरी गुड फॉर लंग्स। सर यस, बोलो। सर शंख में क्या होता है? शंख में सर, शंख में क्या होता है? शंख में भी सर सेम ही होता है बेटा। शंख में क्या होता है कि जैसा उसमें एयर घूमती है बेटा। शंख में एयर घूमने के लिए उसमें देखो ना, शंख ऐसे होता है ना, शंख ऐसे होता है शंख, तो उसमें बेटा ऐसे एयर घूमने के लिए चैनल्स होते हैं, और यहाँ से मान लो फूंक मारते हैं। यस सर, यस सर। तो बेटा फूंक जब मारते हैं तो उसमें एयर क्या होती है, एयर उसमें घूमती है एक पार्टिकुलर पैटर्न में, और फिर आवाज निकलती है। जैसे आप लोग एक छोटा सा काम करना, जैसे मोबाइल में गाना बज रहा होता है, मोबाइल में गाना बजता है, तो जैसे स्पीकर नीचे है तो अपने हाथ को लगाना, आवाज आपकी बढ़ जाती है। नोटिस किया आपने? यस सर। तो भाई ये जो हाथ है, ये दिस एक्ट एज रिफ्लेक्टेड, तो यहाँ चीज आपने इसको दबा लिया। देख रहे हो बेटा, सब देख रहे हो सभी लोग? यस सर। यस सर। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साउंड। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साउंड। ठीक है बच्चों? यस सर। और कुछ पूछना किसी को बच्चों? यस सर। तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कल ही मैंने बताया था ना, एनिमल्स, काऊ अलग साउंड निकालती है। हम जान जाते हैं कि ये गाय बोल रही है, ये
बकरी बोल रही है, ये डॉग बोल रहा है. So different, the point is different animals have different ability to produce the sound. सभी एनिमल्स के वोकल कॉर्ड्स अलग अलग होते हैं, सब पता सभी को. लेकिन जैसे होते हैं ना, पैरट्स होते हैं, पैरट्स क्या होते हैं, पैरट्स क्या करते हैं, पैरट्स वोकल कॉर्ड्स होते हैं क्या? डू पैरट्स हैव वोकल कॉर्ड्स? बच्चों बताओ. लिपि बोल. लिपि, पैरट्स में वोकल कॉर्ड होते हैं क्या बेटा? एनीबॉडी एल्स? पैरट्स हैव वोकल कॉर्ड. पैरट्स के अंदर, पैरट्स देखो ना, पैरट्स नकल करते हैं अपनी, तो पैरट्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं क्या? यस होंगे, क्योंकि वो बोलते हैं. नहीं, पैरट्स बेटा नकल करते हैं अपनी, उनके वो बहुत नकलची होते हैं तोते, ठीक है ना. वोकल कॉर्ड्स आर नॉट सो डेवलप्ड, they are good in mimicking humans or any sound. ठीक है बच्चों, मेरी अगली क्लास है बेटा, ठीक है. अब कल से बेटा. सर. ठीक बेटा. चलो बेटा, गुड डे. एक्सक्यूज मी सर. Yes, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, गुड लक. गॉड ब्लेस यू.